Hello everyone. As you know that I am doing polity, previous year questions from state public service commissions. Okay, so if you are a candidate of UPPCS, MPPCS, or Bihar PCS, whatever exam, I mean state exam you are targeting, so this lecture series will be very helpful for you. Okay, so I have started the new chapter which is articles of the constitution. Okay, so the questions which have already came in this state PSC based on this topic, this we are dealing. Okay, I think one or two chapter already I have done, I mean part I have already done. So we'll start some more question from this topic. As I already mentioned that I am dealing the last 30 year questions. Okay, so this about myself. So let's see some more question from this topic. Okay, so you can see this question came in Bihar PCS. Indian Constitution consists of, okay, so how many articles are in Indian Constitution? 300 articles, 350 articles, more than 400 articles, 500 articles. Okay, see, when our constitution initially when they made, it was something around 395 articles, but later many articles has been increased. So now in Indian Constitution we have more than 400 articles. Okay, so the answer will be C. We'll read here for better understanding. Originally there were 22 parts, 395 articles and 8 schedules in the Indian Constitution. A number of articles were added and removed later through amendments. Okay, so they have done a lot of amendments. So with the amendments, some articles they have been removed and some articles they are added. At present there are around 470 articles, but these were added in the form of sub parts such as A, B, C, etc. Okay, so जो भी आर्टिकल्स हैं उसको ऐसे ABC के फॉर्म में जो भी नया ऐड किया गया है वो इसके फॉर्म में रखा गया है. ओके, ऑफ द आर्टिकल्स 395. ओके, और स्केड्यूल्स की बात की जाए तो इनिशियली हमारे पास आई मीन इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज 8 schedules, बट नाउ देयर इज 12. ओके, सो द आंसर इज C. नेक्स्ट फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है. हाउ मेनी पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स वर देयर इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, देखिए अभी प्रेजेंट टाइम की बात नहीं कर रहा, जब बना था उस टाइम पे कितने पार्ट्स थे, कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल्स थे. सो पार्ट्स 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स, 8 schedules. If you remember the previous question, you can easily answer this question. Okay, the explanation part, if you remember the explanation part, that's what. Okay, wherever explanation is given, I'm doing that as well, so that you get extra knowledge for solving other questions. Okay, 24 parts, 450 articles, 12 schedules, 22 parts, 390 articles, 8 schedules, schedules जो भी आप बोल सकते हो, doesn't matter. 24 parts, 425 articles, 12 schedules. Okay, so its answer is E. We in the in the original constitution there were 22 parts, 395 articles and 8 schedules. Again similar kind of question, easily you can answer. See, doing same question again and again, the reason is that we have to know that where this question has been asked. Okay, and if you are repeating the same question again and again, that question is going to remember for you. Okay, you can remember for longer time. तो वो क्वेश्चन या सिमिलर टाइप का कुछ क्वेश्चन उसके आसपास का आता है, यू कैन ईजिली आंसर. ओके, सो डोंट थिंक लाइक क्यों एक ही क्वेश्चन को बार बार कर रहे हैं. The question which is repeating actually many times, those question you can say the most important questions. Okay, जैसे आप जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो कोई क्वेश्चन अगर बार बार आता था एग्जाम में तो उसको हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलते थे. तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ करना. द क्वेश्चन विच इज़ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, दैट क्वेश्चन इज
The topic actually is most important. Okay. There were originally how many articles in the Constitution of India? 420, 380, 395, 270. Okay. So you can easily answer this question. So articles, okay, originally in the Constitution of India 395. Answer is C. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए रिपीट हो रहा है, बीपीएससी में फिर से पूछ दिया. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन comprises ऑफ 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 12 schedules, 371 आर्टिकल्स, 21 पार्ट्स, 11 schedules, 372 आर्टिकल्स, 20 पार्ट्स, 7 schedules, 381 आर्टिकल्स, 23 पार्ट्स, 8 schedules. ओके, तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चंस. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स. ओके, सो द आंसर इज ए. अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैच है, वो ये है कि देखिए ओरिजिनली, इसमें ओरिजिनली ऐसा कुछ टर्म नहीं बोल रहा है. ठीक है, तो हमें लग सकता है कि 8 वाला 8 शेड्यूल शुरू में था. ठीक है, यहाँ पे 12 है, बट अगर आप आर्टिकल्स देखोगे तो ये चीज़ गलत है इसमें. ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये कि हमारी जो अभी आर्टिकल्स हैं वो 400 से ज़्यादा हैं, बट दे आर द सब पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स. ऐसा नहीं है कि 396 ऐसे कुछ करके दिया गया, ऐसे नहीं है. इसी में ही जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद करिए आप, उसको 51A किया गया, तो 51 आर्टिकल है तो उसके बाद 51E रखा गया है. ओके, सो इस तरीके से करके बढ़ाया गया है. तो दैट्स वाई द आंसर इज, अगर यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे भी 395 और 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स दे देता, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. तो यहाँ पे बोलता कि करंट वाला बताना है कि ओरिजिनल जब बना था वहाँ पे बनाना है, बताना है. ठीक है, तो उसके हिसाब से आप ऑप्शंस को थोड़ा सा ध्यान से रख के करके टिक करिएगा. ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट. सो द आंसर इज ए. नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वर established by the 1956 स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्ट. ठीक है, 14 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरीज, 18 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरीज, 22 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, 21 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, तो 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग हुआ था उसमें कितने स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज बनी थी. ओके, देखिए, तो जो हमारा बाई 1956 स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्ट, इसके थ्रू 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी. ओके, बाद में फिर और बढ़े थे, बट एज पर दिस इट वाज 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज. सो द आंसर इज ए. नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज 12, 16, 8, 10. अब देखिए ये प्रेजेंट टाइम की ही बात करें क्योंकि 12 भी दे दिया, 8 भी दे दिया. सो वी हैव टू चूज़ एक्चुअली ए. ठीक है, ओरिजिनली बोलता तो 8 चूज़ करते, बट सिंस दे आर नॉट मेंशनिंग ओरिजिनली और current time, okay, so we will choose the current time. So the 12 schedules is there. Okay, we'll read here some of the explanation. There are 12 schedules in our constitution. Originally there were only 8 schedules, but 4 schedules were added by amendment act. Okay, 9th schedule was added by first amendment act 1951. ठीक है, तो 9th schedule जो है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था, रिलेटेड टू वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस. 10th schedule was added by 52nd amendment act. ठीक है, 52nd amendment act से 10th को ऐड किया गया था in 1985, which contains provision of disqualification on the ground of defection. Okay, 10th schedule एंटी डिफेक्शन लॉ आपको याद होगा. ओके, काफ़ी न्यूज़ में रहता है.
सो 10th शेड्यूल इज एंटी डिफेक्शन लॉ। ये भी एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सा शेड्यूल में दिया हुआ है। सो इट इज़ 10th शेड्यूल। 11th शेड्यूल was added by 73rd Amendment Act of 1992 and it contains provision of पंचायती राज, ठीक है। And 12th schedule was added by 74th Amendment Act of 1992 which contains provision of municipal corporation, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 4 शेड्यूल बाद में ऐड हुए थे। सो द आंसर इज ए। Again, Indian Constitution has 9 schedules, 12 schedules, 10 schedules, 11 schedule। आराम से आप आंसर कर सकते हो 12 schedule, okay? I don't think much explanation is required for this. Now you are already the expert regarding the schedules. Okay. Now this question we'll see. Consider the following statement. They are asking the correct statement, okay? The Constitution of India has 20 parts. There are 390 articles in the Constitution of India in all, okay? 9th, 10th, 11th and 12th schedule was added to the Constitution of India by Constitution Amendment Act। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए IAS का, सिविल सर्विसेज UPSC का क्वेश्चन है, बट ये अगर आप पिछले क्वेश्चंस को करे हुए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए पीस ऑफ केक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे भले ऐसे 3 स्टेटमेंट दे दे बट आराम से इसके क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ऑलरेडी उनका आंसर आ चुका होगा, मुझे नहीं लगता कि उसको बताने की ज़रूरत है, बट स्टिल आई विल टेल यू, ठीक है। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 20 पार्ट्स, नहीं ये तो गलत है, 22 पार्ट्स है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, ओके। देखिए अगर पहला स्टेटमेंट गलत है इसमें देखिए 2 स्टेटमेंट हमारा पहले गलत हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देयर आर 390 आर्टिकल्स, नहीं 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये तो हमारा पक्का सही है। आपको अभी हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन देखे थे। 9th and 10th, 11th and 12th schedule were added by the Constitution of India by Constitution Amendment Act। सही है, ये चीज़ सही है, एकदम सही है। सो द आंसर इज सी, ओके। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो लोग UPSC में ऐसा वो टफ क्वेश्चन आता है, टफ क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन इजी ही होते हैं, बट कई क्वेश्चन होते हैं दे आर वेरी वेरी सिंपल, ओके। इवन जो हमारे जो स्टेट PSCs के क्वेश्चन होते हैं उससे भी ईजी होते हैं, ओके। अब ठीक है, यहाँ पे फिर से हम लोग एक बार और एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे। सेम ही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ जो इससे पहले हम लोग देखे थे, इट जस्ट रिवीजन, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 22 पार्ट्स, हैंस स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। देयर आर 395 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हैंस स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। 9th, 10th and 11th, 9th, 10th, 11th and 12th schedule were added by Constitution of India by Constitutional Amendment Acts, ठीक है, ये सही है। 9th, देखिए इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि 9th, 10th, 11th, 12th में क्या है। 9th schedule added by the First Amendment Act 1951 is related to the land reform and abolition of जमींदारी system, ठीक है। 10th schedule is added by 52nd Amendment Act of 1985 is related to anti-defection provision for matters of parliament and members of state legislature, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ जैसे कि इलेक्शन होने के बाद ही ना जैसे मेंबर होते हैं वो पार्टी चेंज करते रहते हैं, तो उस चीज़ को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया था। बाई 11th शेड्यूल एडेड थ्रू 73rd Amendment Act, या 73rd Amendment Act of 1992 पंचायती राज, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। हैव बिन गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाइल द 12th शेड्यूल एडेड बाय द 74th Amendment Act of 1992 म्यूनिसिपैलिटीज आर गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ठीक है। सो द आंसर इज सी। फिर से देखिए ये भी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है।
देखिए इससे मतलब नहीं कि किस एग्ज़ाम में आया हुआ है, क्वेश्चन हमें ज़्यादा ध्यान में देना है। किस एग्ज़ाम में आया हुआ है वो तो ठीक है, वो भी हमें जानना है, बट इट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या पूछा हुआ है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ओके, कौन सा चीज़। इससे हमें ये पता चलता है कि ना कि जब भी हम बुक को पढ़ते हैं या फिर लेक्चर्स को देखते हैं, किन किन चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। देखिए इसमें स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है, कई बार नॉट करेक्ट भी पूछता है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि करेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट पूछ रहा है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ in ninth schedule of the Constitution of India. Okay, the validation of law placed in the ninth schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नहीं, this is wrong. Okay, one second, what they're asking correct. Okay, correct they're asking. देखिए the parliament of India can be placed, I was thinking not correct, but actually हमें correct statement बताना है। ठीक है, the parliament of India can place a particular law in ninth schedule of the constitution of India. Yes, this is correct, ये चीज़ सही है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द नाइन्थ शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन बाई एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। ओके, तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, आंसर इज ए। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। नाइन्थ शेड्यूल डील्स विद द एक्ट एंड रेगुलेशन ओरिजिनली 13 presently 282 of the state legislature dealing with the land reform and abolition of jamidari system and of the parliament dealing with other matters. ठीक है, अब उस टाइम पे ना जैसे एक ही लोग के पास बहुत ढेर सारी ज़मीन थी, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एक सीलिंग कर दी कि एक बंदे के पास इतना ही रहेगा, और जिनके पास नहीं था उन लोगों को भी ज़मीनें दी गई। ठीक है, जैसे अंग्रेज जमींदार वगैरह बना के गए थे ना, वो फिर जब गए तो वो सोच लिए कि हमारा ही हो गया। अब किसी के पास सुनो 1000 ऑफ एकड़ ऑफ ज़मीन, किसी के पास एक थोड़ा सा भी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट कर दिया कि तुम्हारे पास इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, और फिर लैंड को जो गरीब लोग थे उन लोगों को भी दिया गया था। ओके, सो दैट कि जो इनइक्वालिटी है वो चीज़ थोड़ा सा ख़त्म हो सके। Okay, so this schedule was added by the First Amendment Act of 1951 to protect laws included in it from judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental right. Obviously बात है। ठीक है, however 2007 the Supreme Court ruled that the law included in the schedule after 24th April 1973 are now open for judicial review. ठीक है, ये केशवानंद भारती केस की बात हो रही है, 24 अप्रैल 1973। उससे पहले जो भी हमारे इसमें नाइन्थ शेड्यूल बोल रहा है, नाइन्थ शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, बट जब हमारे केशवानंद भारती केस हुआ उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो, जो भी लॉज नाइन्थ शेड्यूल में हैं, ओके, इट कैन बी दैट इज़ ओपन फॉर द जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, सो द आंसर इज A.